مختلف لیبارٹریز بنائی گئی ہیں، اور جو حالیہ ایک بڑی لیبارٹری بنائی گئی کراچی یونیورسٹی میں، جس کی کیپیسٹی 800 ٹیسٹ ڈیلی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مختلف اسٹیپس لیے گئے، دنیا میں دیکھا گیا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے کس طرح اس سلسلے کو فیس کیا اور وہاں پہ انہوں نے کیا اسٹیپس لیے. یہی چیزیں ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے اور دیگر صوبوں سے بھی شیئر کی. فیڈرل گورنمنٹ کی جو اس میں آپ اگر سیریسنس دیکھیں، خاص طور پر ہمارے محترم پرائم منسٹر صاحب کی، تو انہوں نے 13 مارچ کو پہلی میٹنگ کی. 26 فیبروری سے کیس آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں. پوری دنیا میں کووڈ-19 نے تباہی مچائی ہوئی ہے، ہماری نیبرنگ کنٹریز میں بھی ہیں، لیکن ہماری سیریسنس جو ہے وہ یہ ہے کہ اتنے دنوں کے بعد اس میں سیریس ہوا جا رہا ہے. ظفر صاحب ضرور ہمارے رابطے میں رہتے تھے، اور ضرور وہ کوئی جو بات ہوتی تھی تو ان سے ہم لوگ ضرور شیئر کرتے تھے. پھر جو چیزیں دیگر ممالک نے کی لاک ڈاؤن مثال کے طور پر، اور اگر چیف منسٹر سندھ نے لاک ڈاؤن کی اسی میٹنگ میں رائے دی کہ یہ پراپر طور پر 15 دن کا لگا دیا جائے تو اس سے بہتر نتائج آئیں گے، لیکن اس پر اس طرح نہیں دیا گیا. بلکہ جو میسیجز آئے، ہماری صرف گلہ اس لیے ابھی کرتے ہیں ہم لوگ کہ آپ نے دیکھا کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ کی آپ سب نے تعریفیں شروع کر دیں، میڈیا پہ بھی اور باشعور لوگوں نے بھی، اور WHO اور دیگر انٹرنیشنل جو بھی اس طرح کے انسٹیٹیوشنز ہیں، تو ایک دم یہ چیزیں ہضم نہیں ہوئیں اور یک طرفہ ہم پر ایک قسم کی انہوں نے طنز شروع کر دیے. آپ نے دیکھا کہ کچھ وزراء کچھ ان کے ترجمان آ کر شروع ہو گئے بغیر کسی وجہ کے. حالانکہ ہمارے چیئرمین بلاول صاحب نے پہلے دن پرائم منسٹر سے کہا کہ اس مشکل گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے ہمیں بھی کہا کہ آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ کام کرنا ہے. اور جو پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہوتی ہے وہ ہم نے کوارنٹین میں ڈال دی تھی تاکہ اس وقت ساتھ چلنا ہے. لیکن ایک دم یہ چیزیں ان سے ہضم نہیں ہوئی کہ یہ کیسے ہو رہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کی سپورٹ کی جا رہی ہے، اس کی تعریف کی جا رہی ہے، تو ایک دم سب وزراء صاحبان سامنے آ گئے، ترجمان آ گئے، اور پھر ایک کردار کشی اور الزامات. آج بھی دیکھ لیں کہ ان کے بہت سے لوگ بے تکی باتیں کرتے ہیں. میں آپ کو عرض کروں کہ پیپلز پارٹی اور PTI میں جو فرق ہے وہ عین کا فرق ہے جو شعور اور شور میں ہوتا ہے. یہ صرف شور کرتے ہیں لیکن کام جو ہے وہ نہیں کرتے. تو یہ ایک بڑا ایشو ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے محترم پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہیں لگے گا، لیکن جب سندھ نے لگایا تو اس کے بعد پنجاب میں بھی لگ گیا، بلوچستان، KP، ایون آپ لوگ تو اسلام آباد میں رہتے ہیں، آپ بتائیں کیا یہاں پہ لاک ڈاؤن نہیں تھا یا نہیں ہے؟ بالکل تھا. لیکن الزام صرف آپ کو سندھ پہ نظر آئے گا کہ جی انہوں نے بڑا ظلم کر دیا. ہم پر الزام لگتا ہے کہ جی سندھ گورنمنٹ، چیف منسٹر سندھ جو ہے وہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، عجیب بے تکی باتیں کرتے ہیں کہ ہم حقیقت بتا رہے ہیں کہ یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. یہ اگر فیڈرل گورنمنٹ نے جو اقدامات شروع میں نہیں کیے جس کی وجہ سے یہ وائرس زیادہ پھیل گیا، تو اب تو ہمیں ایک لمبے عرصے اس وائرس کے ساتھ جینا ہے، رہنا ہے. تو اس لیے اب تو ہم سندھ میں تو نئی وے آف لیونگ کی بات ہو رہی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے انسٹرکشنز پر ہم لوگ اس طرف جا رہے ہیں کہ کس طرح ساری چیزوں کو بہتر بنایا جائے اور کس طرح لمبے عرصے تک ہم نے اس وائرس کو فیس کرنا ہے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ سے شیئر کرنی تھی کہ صرف ایک الزامات آپ کو نظر آئیں گے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جی پلیز. سوال ہے کہ عثمان ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر سندھ گورنمنٹ نے یونیورسٹی پر نہ مانا تو اگلے کچھ دنوں تک جو ٹائیگر فورس ہے
जो सिंध और कराची की हर गली में नजर आएगी। तो किस क्या चीज़ को नहीं माना, किस चीज़ को नहीं माना? गवर्नमेंट जो है वो टाइगर फोर्स का तक देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, उस्मान डार साहब मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में मेरे साथ रहे हैं और ये एक उसी चीज़ का हिस्सा है डिसइंफॉर्मेशन का कि जो ये इस तरह आके कहते हैं। मुझे ये उम्मीद नहीं थी उस्मान डार से कि वो ऐसी बात करेंगे, क्योंकि हमने तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए लेटर लिख दिया है। हमें नाम पर एतराज़ अब भी है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तमाम डिप्टी कमिश्नर साहिबान को ये लेटर लिख दिया कि इनको फैसिलिटेट किया जाए, तो आए अपना काम करें, हमें तो कोई उससे वो नहीं है जी। समटाइम तो लगता है शाहिद साहब कि बहुत हम आहंगी आप दोनों के दरमियान, फेडरल में और सिंध के दरमियान, और कभी कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। ये जमहूरियत का हुस्न है या कोई नोरा कुश्ती है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, इसके मुनसिफ आप हैं और पाकिस्तान की अवाम है कि हम किस तरह चलना चाह रहे हैं। चेयरमैन साहब ने क्या मैसेज दिए, चीफ मिनिस्टर साहब कैसे, और किस तरह आके इनके वुज़रा ने हम पर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए फजूल किस्म के। मैं आपको मिसाल के तौर पर दे दूं कि अगर चीफ मिनिस्टर साहब ऑनरशिप करते हैं, रोज़ आकर बताते हैं इन सारी चीज़ों को, तो एक वज़ीर ने आके कहा कि जी चीफ मिनिस्टर साहब आके ख़बरें पढ़ते हैं। 2 वुज़रा यहाँ से इस्लामाबाद छोड़कर कराची पहुँचे। एक ने कहा कि जी ये यूसीज कैसे बंद की कर सकते हैं, लोग बाहर निकल आएंगे, इतना जुल्म कर रहे हैं। और उससे पहले आपके इस्लामाबाद में 12 कहू में पूरा इलाका सील था, केपी में कुछ इलाके सील थे, पंजाब में एक दिन पहले वहाँ पे कुछ यूनियन काउंसिल सील्ड हुई, उस पर बात नहीं की गई, लेकिन स्पेशली वहाँ आया गया। एक वज़ीर मौसूफ ने कह दिया जी बालाई सिंध में तो इनके पास कुछ भी नहीं है, हालांकि बालाई सिंध में 4 हॉस्पिटल और 4 लेबॉर्ट्रीज़ जहाँ पे ये सारी काम कर रही थी। फिर इनके मुख्तलिफ चीज़ें कि जी इन्होंने, आपने देखा कि जी इल्ज़ाम लगाए कि जी हेल्थ सेक्टर जो है आजकल बड़ा फोकस हुआ है। हालांकि हमारी जो मिनिस्टर हैं अज़रा पेचुए साहब, वो बहुत काम कर रही हैं, डे 1 से वो काम कर रही हैं और उनकी वजह से बहुत बेहतरी आई है। हमने जैसे बताया कि 80 से 6,000 से ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। जिस वक्त ज़ाहिर है कोविड के पेशेंट्स के लिए तो हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी, इस वक्त हमारे पास 12,000 बेड की कैपेसिटी मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, मुख्तलिफ जगहों पे हमने मुकम्मल तौर पर तैयार है, जो 20,000 तक हम कुछ ही दिनों में पहुंच जाएंगे। जो वेंटिलेटर हैं हमारे पास कोविड के लिए इस वक्त जो मुख्तस किए गए हैं, क्योंकि दीगर हॉस्पिटल्स में और भी पेशेंट होते हैं, तो 280 प्लस है। अभी हमने 200 जो है इंपोर्ट किए हैं वेंटिलेटर, जिसमें से 100 पहुंचने वाले हैं और बाकियों के लिए भी है। फेडरल गवर्नमेंट ने हमें ज़रूर NDMA से कुछ सपोर्ट आई है, जिसका बहुत बड़े ऐलानात किए जाते हैं कि हमने इतने मास्क दे दिए, इतने PP किट्स दे दी। दीगर चीज़ें भी जो उन्होंने कही वैसी नहीं है, हमें कुछ सामान ज़रूर मिला है, लेकिन जैसे वो कह रहे हैं कि लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश कर दी, ऐसा नहीं है। वेंटिलेटर अभी तक एक नहीं मिला, उसके लिए हमने कहा है कि हमें उसमें सपोर्ट की जाए, और जाहिर है हम पूरी उम्मीद हैं कि सपोर्ट की जाएगी। लेकिन ये जो एकदम तनाव की कैफियत आ जाती है वो मुनासिब नहीं है। अब भी हम देखें, ऑनरशिप करनी चाहिए ना। प्राइम मिनिस्टर साहब लॉकडाउन की तारीफ भी करते हैं कि उसकी वजह से उसमें फ़र्क पड़ा फैलाव को रोकने में, लेकिन उसी वक्त कुछ और मैसेज भी देते हैं। हम तो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब लीड लें, वो एक फ़ैसला क्यों नहीं करते? मुख्तलिफ सूबे अपने अपने फ़ैसलों में उनको कह दिया जाता है कि जी आपका इख्तियार है। हमें तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अहकामात हैं, जो इनका एक शॉर्ट ऑर्डर आया था कि सब ने एक तरह की पॉलिसी बनानी है, तो हम तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि ये जो अभी फैसला आया था 31 मई तक के लॉकडाउन का, और उसमें कहा गया था ये चीज़ें खुलेंगी बाकी नहीं खुलेंगी, लेकिन बाद में फिर दीगर चीज़ों के लिए कह दिया गया। अब वो फिर उसको वजाहत भी नहीं की गई। हम तो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब आगे आए और इसका ऑनरशिप लें, लेकिन वो अब
सब आप उनसे पूछ सकते हैं ये बातें। जी। जैसे एजुकेशन की कॉन्फ्रेंस में ये मुश्तरका फैसला हुआ मुतफ़िक़ा, उसके ऊपर सिंध ने बहुत अच्छा अमल किया, जी। तमाम सूबों ने किया। अब वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि सूबों से मैं कहता हूँ, मशवरा देता हूँ, तजवीज़ देता हूँ कि वो ट्रांसपोर्ट खोलें, मगर ऐसा देखा गया है कि वफाक जो फैसला करता है सिंध उसकी मुखालिफत कर सकती है, या इसके ऊपर भी अब पॉलिटिक्स हो रही है जानबूझकर। शुरू में सिंध संजीदा नज़र आया है, जिसके ऊपर सब ने तारीफ की है, पूरे मुल्क की तमाम बज़ाहिर भी की है और अंदर खामोशी से भी की है कि वाकई अच्छे इकदाम कर रहा है। अब पार्लियामेंट का इजलास भी आया है, उसके ऊपर उसमें भी अपोजिशन ने तनकीद पर तनकीद की है, कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं आई। तो आप लोग अब ट्रांसपोर्ट नहीं खोल रहे, बाकी शॉपिंग मॉल, देखिए मैं आपको क्या मुखालिफत अर्ज करूं। जी जी। सारे मुल्क में जो ट्रेडर्स हैं वो बड़ी मार्केट खोलने का मुतालबा कर रहे हैं और अब वो ये कह रहे हैं कि हम एसओपी पर अमल करेंगे, ईद से पहले 24 घंटे खोलने का मौका दिया जाए। सिंध हुकूमत की इस हवाले से देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, ट्रांसपोर्ट दीगर चीज़ों भी हम तो कह रहे हैं ना कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब वो फैसला करते हैं तो हम उस पर अमल करेंगे। अब ये जो गू मगू की कैफियत होती है और जो कन्फ्यूजन की कैफियत होती है, इसी वजह से ये इस तरह हुआ है। ज़ाहिर है हमारे तहफ़्फ़ुज़ात तो थे ना। देखिए मई जो है बड़ा अहम है, इस मई में इस वायरस ने बहुत ज़्यादा फैलना है, लेकिन अगर एक फ़ैसला हुआ है तो उसको होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट पे बलूचिस्तान का एतराज़ भी है, सिर्फ सिंध का नहीं है, बलूचिस्तान का